Hello all and a very good evening. So we'll resume back with the lectures. So last lecture में मैंने पढ़ाया था positive deviation from the Raoult's law, right? Today we'll start with negative deviation from the Raoult's law. ठीक है, right? Negative deviation from Raoult's law. ठीक है, so let us start with this part. Right. तो इस वाले केस में क्या है? First of all, for a solution, having liquid A and liquid B, ठीक, will show negative deviation from Raoult's law. It will show negative deviation from Raoult's law when ध्यान से देखना, AB interactions are stronger than AA interactions and AB interactions are stronger than BB interactions. Getting now? That means escaping tendency of liquid A from solution AB is less than its escaping tendency from pure solvent A or hypothetical ideal solution AB. तो जो एक्चुअल सोल्यूशन है फॉर अ सोल्यूशन हैविंग liquid A and liquid B, मतलब solution AB, will show negative deviation from the Raoult's law when the AB interactive forces, मतलब जो forces A और B के बीच में solution में है, those forces are stronger than AA interactions and also AB interactive forces are stronger than BB interactions. ठीक है, correct. And third thing, AB interactive forces in the solution are stronger than AB interactive forces in, जैसे मैंने बताया था पॉजिटिव डिविएशन में, हाइपोथेटिकल आइडियल सोल्यूशन. बिकॉज हाइपोथेटिकल आइडियल सोल्यूशन में जो AB इंटरैक्टिव फोर्सेस होंगे, हाइपोथेटिकल आइडियल सोल्यूशन में जो AB इंटरैक्टिव फोर्सेस होंगे, दोज विल बी सेम एज व्हाट? दोज विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट? Those will be almost similar to AA interactions and almost similar to BB interactions. Getting ना? Hypothetical ideal solution. मगर यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल सोल्यूशन है उसमें जो AB इंटरैक्टिव फोर्सेस है, दे आर स्ट्रॉन्गर देन AB interactive forces in the hypothetical ideal
सोल्यूशन। गेटिंग ना? तो इससे फर्स्ट इन्फ्रेंस क्या निकलता है? फर्स्ट इन्फ्रेंस ये निकल कर आता है कि एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ लिक्विड ए फ्रॉम सोल्यूशन ए बी is less than escaping tendency from pure solvent A or from hypothetical ideal solution AB. Getting now? Right. Q? Because forces holding A, which are AB interaction forces in solution AB are stronger than what? They are stronger than AA forces, right? तो अगर ऐसा होगा, therefore इस वजह से क्या हो जाएगा? इस वजह से ऐसा हो जाएगा, the vapor pressure of A in the solution AB is, because escaping tendency क्या हो गया? कम हो गया ना, इस वजह से vapor pressure of A in the solution AB क्या हो जाएगा? Will be less than vapor pressure of A in the hypothetical ideal solution, which means vapor pressure of A in this solution AB will be less than P naught A chi A in the liquid phase. ठीक है ना? Right? Getting? Because escaping tendency of A from solution AB is less than its escaping tendency from the hypothetical ideal solution, as well as less than its escaping tendency from the pure solvent A. इस वजह से vapor pressure of A in the solution AB will be less than vapor pressure of A in the hypothetical ideal solution, means what? P naught A chi A liquid. Similarly, जैसे हमने यहां पे बात करी किसकी? हमने यहां पे बात करी escaping tendency of liquid A from ideal solution AB. उसी तरह हम बात करेंगे किसकी? Similarly, escaping tendency of liquid B from the solution AB showing negative deviation is less than its escaping tendency from pure B or hypothetical ideal solution. Why? Because AB interactions, or because forces holding B, which is what? AB interactions because forces holding B, AB interactions in solution AB, which shows negative deviation, are
stronger than are stronger than BB interactions or interactions in hypothetical ideal solution, right? Therefore, vapor pressure of B is less than कितना? Vapor pressure of B in the solution AB is less than vapor pressure of B in the hypothetical ideal solution, which implies that vapor pressure of B in the solution AB, vapor pressure of B in the solution AB is less than what? P naught B chi B in the liquid phase. Getting right? तो दो चीजें, राइट? तो अगर हम लोग यहां पे इसको, अगर मैं तुम्हें ऐसा डायग्राम बना के दिखाऊं, सपोज करते हैं कि दिस इज, मान लो let us suppose that this is pure A. इसको मान लेते हैं प्योर A, ठीक है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे AA इंटरेक्शंस है, ठीक? उसके बाद हम मान लेते हैं कि let us suppose that this is प्योर बी, इसको मान लेते हैं कि ये जो है this is pure B, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे BB इंटरेक्शंस है, ठीक है? और ये दोनों मिक्स होकर के क्या बनाएंगे? They will mix together and they will form a non-ideal solution. They will form a what? They will form a non, mix हो जाएंगे, solution रहेगा, मतलब homogeneous mixture तो रहेगा, ठीक है? Right? They will form a non-ideal solution. Solution क्या है? Solution AB. Solution is AB, ठीक है? This is non-ideal solution. यहाँ पे क्या interactions है? यहाँ पे जो है AB interactions है, ठीक है? Right? तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें ये पता चल रहा है इस वाले केस में, we come to know that in this case, what do we come to know? We come to know from here that AB interactions जो हैं, AB interactions जो हैं, they are stronger than AA interactions and they are stronger than BB interactions, ठीक? Right? And because यहाँ पे there is a deviation from the Raoult's law, that it means it is clear that A and B, they have
डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, शेप, ये सब मैंने बताया था आइडियल सॉल्यूशन में, साइज, पोलैरिटी, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सेट्रा, ठीक है ना. दे हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, डिफरेंट, ठीक है, राइट. तो यहां से अगर हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की बात करें, ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया है, अगर हम लोग इसके वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू कितना, विल बी इक्वल टू हाउ मच, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी. ठीक है, मतलब जो भी वेपर प्रेशर ऑफ ए, ऑल्दो वो लेस देन पी नॉट ए का ये है, मगर जो भी होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी. गेटिंग. अच्छा, अब देखो, नाउ सिंस दिस वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन कितना, दिस इज लेस देन पी नॉट ए, दिस वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन पी नॉट ए chi a liquid, and this vapor pressure of B, ये जो है वेपर प्रेशर ऑफ ए, दिस इज लेस देन व्हाट, लेस देन पी नॉट ए chi a liquid, and this vapor pressure of B is also less than P naught B chi B liquid. Therefore, total vapor pressure of the solution, which is equal to vapor pressure of A, total vapor pressure of the solution, vapor pressure of the solution which is equal to vapor pressure of A plus vapor pressure of B is less than what, P naught A chi A liquid plus P naught B plus P naught B chi B liquid. करें तो यहां से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विच शोज नेगेटिव डिविएशन from Raoult's law, negative deviation from the Raoult's law, vapor pressure of the solution is less than what, it is less than P naught A chi A liquid plus P naught B chi B liquid. Correct. Vapor pressure of the solution इससे कम होगा. ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है ना, ऐसा. तो यहां से प्रॉपर्टीज में आने से पहले अगर हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें, रिप्रेजेंटेशन ऑन, प्रॉपर्टीज में आने से पहले लेट अस सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑन representation on vapor pressure versus composition graph. composition मतलब काई ग्राफ. ठीक है, उस ग्राफ पे अगर हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, यहां पे ग्राफ देख लेते हैं एक बार कि ग्राफ में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा.
तो यहाँ पे जैसा हमने देखा था, दिस इज, मान लेते हैं दैट दिस इज काई ए, यहाँ पे मान लेते हैं काई ए इन द लिक्विड फेज, वेट इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, यहाँ पे इस तरफ काई ए इन द लिक्विड फेज इज 1 एंड काई बी इन द लिक्विड फेज इज 0। यहाँ पे काई ए इन द लिक्विड फेज इज 0 और यहाँ पे काई बी इन द लिक्विड फेज इज 1। ठीक है, तो इसके हिसाब से, और अभी भी वही चीज है कि पी नॉट बी इज मोर देन पी नॉट ए, बी इज मोर वोलेटाइल। ठीक है, तो मतलब क्या, पी नॉट बी, बी इज मोर वोलेटाइल than A. That means P naught B is more than P naught A। ठीक है, तो जहां पे काई A इज इक्वल टू 1 है, पहले हम लोग आइडियल सोल्यूशन ग्राफ बनाते हैं, जहां पे काई A इज इक्वल टू 1 है वहां पे क्या ले लेते हैं, ओवर है काई ए इज इक्वल टू 1। पहले फर्स्ट विल मेक द ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, फिर वहां पे हम दिखाएंगे कि नेगेटिव डिविएशन ग्राफ कैसे आएगा। ठीक है, तो काई ए इज इक्वल टू 1 है, तो काई ए इज इक्वल टू 1 जहां पर है वहां पे लेट अस टेक व्हाट, ये यहां पे ले लेते हैं क्या, यहां पे हम लोग ले लेते हैं पी नॉट ए। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं पी नॉट है, राइट। और आइडियल सोल्यूशन हिसाब से वेपर प्रेशर का ग्राफ कैसे जाएगा, जहां पे काई ए इज इक्वल टू 0 है वहां पे पी नॉट ए काई ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां पे काई ए इज इक्वल टू 1 है, पी नॉट ए काई ए क्या होगा, पी नॉट ए होगा। तो इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, राइट। स्ट्रेट थोड़ा बना देता हूं। ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, फिर जहां पे काई पी लिक्विड कितना है, 1 है, काई पी लिक्विड 1 है, जहां पे वेपर प्रेशर आइडियल का क्या होगा, पी नॉट बी होगा। और जहां पे काई पी कितना है, 0 है, वेपर प्रेशर आइडियल में क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, 0 होगा। तो पी नॉट बी, पी नॉट इधर ले गया, तो पी नॉट बी को हम लोग इधर ले लें, लेट अस टेक पी नॉट बी समवेयर, यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैंने ले लिया कितना, पी नॉट बी, तो ये हो गया पी नॉट बी, राइट। तो इसके हिसाब से इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, दिस विल बी like this। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कैसे आएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ किस तरह से आएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ रहेगा, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, राइट। नाउ आई हैव टू प्लॉट फॉर, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइंस बनाई हैं, दीज आर द स्ट्रेट लाइंस, दीज आर व्हाट, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैं क्या करूं, मैं इसको नंबर कर देता हूं, this is let us suppose
1, this is suppose 2, right? और wait, थोड़ा खराब हुआ इसको जो है this is suppose 2, this green line graph is 2 and this is 3, right? This graph is 3. इसको भी मैं इसके ऊपर नहीं लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ। तो ये तो मैंने ग्राफ्स बनाए किसके? आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ्स बनाए। दीज आर द ग्राफ्स फॉर द आइडियल सॉल्यूशंस। इट विल गो लाइक दिस, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 1, ठीक है? तो इसके हिसाब से 1 क्या है? 1 इज P0A chi A लिक्विड, ठीक है? 2 क्या है? 2 इज P0B chi B लिक्विड, ठीक है? एंड 3 क्या है? 3 इज P0A chi A लिक्विड प्लस P0B chi B लिक्विड, ठीक है? ये टोटल वेपर प्रेशर। दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। दिस इज फॉर all these three, they are for the ideal solution, ठीक है? मगर अब हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो द नेगेटिव डिविएशन, मतलब जो एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए दैट विल बी लेस देन P0A का ए। मतलब एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ जो है विल बी बिलो द ग्राफ ऑफ P0A का ए। P0A का ए ग्राफ कौन सा? रेड वाला है, ठीक है ना? तो एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ विल गो लाइक दिस, ठीक है? ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन है, तो ऊपर वाला अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा ऐसा डॉटेड कर देता हूं, ओके? दिस विल बी डॉटेड नाउ, स्ट्रेट लाइन को मैंने डॉटेड कर दिया, ठीक है? उसके बाद एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ बी का ग्राफ कैसा हो जाएगा? एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ बी जो है इट इज लेस देन P0B chi B, ठीक है? तो एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ बी का ग्राफ कैसे जाएगा? एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ बी का ग्राफ जो है सेकेंड वाली जो लाइन है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है, उससे ऐसे नीचे सूखे जाएगा और कैसा रहेगा? कर्व रहेगा, ठीक है? राइट। एंड स्ट्रेट लाइन को क्या कर देता हूं? डॉटेड कर देता हूं। मतलब जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल सोल्यूशन दिखा रहा है और जो कर्व्ड है वो किसको दिखा रहा है? सोल्यूशन विच शोज द नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, ठीक है? एंड टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ कैसा होगा? टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन, हमने क्या देखा? टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन, इससे टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन P0A chi A लिक्विड प्लस P0B chi B लिक्विड। सो जो टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ आएगा वो किस तरह से आ जाएगा? वो ग्राफ इट विल कम लाइक दिस, वेट, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है? मतलब कर्व लाइन। और उसके बाद ये डॉटेड जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, मैंने क्या कर दिया? डॉटेड से दिखा दिया, ठीक है ना? राइट। तो इसमें क्या बताएंगे? इसको अगर मैं ऐसा लेबल करने जाऊं तो ये वाला ग्राफ क्या है? ये क्या दिखा रहा है? दिस ग्राफ इज शोइंग व्हाट? रेड वाली लाइन जो कर्व लाइन है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है? which is vapor pressure of A here, red वाली line, which is actually less than P0A, which is less than P0A chi A liquid, ठीक है? वेपर प्रेशर ऑफ ए, राइट? उसी तरह से ये वाला जो ग्राफ बनाया हमने,
यहाँ पे ये वाला जो हमने ग्राफ बनाया, दिस सॉरी दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ग्रीन वाला ग्राफ जो कर्व्ड है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली वेपर प्रेशर ऑफ बी, एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इज लेस देन व्हाट, पी नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज, ठीक है, दिख रहा है ना, जो ग्रीन डॉटेड लाइन है दैट इज पी नॉट बी काई बी, स्ट्रेट लाइन, एंड जो नीचे से कर्व है दैट इज वेपर प्रेशर बी एक्चुअल, ठीक है, एंड उसके बाद यहां पे, यहां से ये जो है दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू कितना, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, so this thing is, wait, this thing is actually what, vapor pressure of solution which is equal to vapor pressure of A plus vapor pressure of B, which is less than straight line, dotted line, P naught A chi A liquid plus P naught B chi B liquid, ठीक है ना, right, the graphical representation, got it, I have labeled it, ठीक है. Now next let us move on to the characteristics of the solution showing negative deviation from the Raoult's law. characteristics में आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना. characteristics, तो सबसे पहले अगर हम बात करें characteristics की, तो सबसे पहले क्या होगा, characteristics of solution showing what, showing the negative deviation from Raoult's law, ठीक है. तो अगर हम इनके फीचर्स की पहले बात करें, तो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फीचर जो आता है वो आता है हमारा क्या, डेल्टा एच. फर्स्ट फीचर आता है डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, ठीक है. फॉर अ सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर जो है, delta H of mixture is negative, getting ना, that means that is there occurs net evolution of heat when solution AB, which shows negative deviation from Raoult's law, is formed.
डेल्टा एच मिक्सचर इज नेगेटिव। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल है। हमें पता है कि जब सोल्यूशन फॉर्म होगा तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ए फोर्सेस प्योर सॉल्वेंट ए में, प्योर सॉल्वेंट ए में ए फोर्सेस, प्योर सॉल्वेंट बी में बी फोर्सेस। ठीक है, तो जब सोल्यूशन फॉर्म होगा सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट ए में ए फोर्सेस एंड प्योर सॉल्वेंट बी में बी फोर्सेस क्या होंगे? टूटेंगे। गेटिंग राइट? तो जब ये फोर्सेस टूटेंगे तो यहां पे क्या होगा? यहां पे हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जैसा मैंने सिखाया, उसके बाद क्या होगा? ए बी फोर्सेस एंड ए बी फोर्सेस दे विल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें हीट इज रिलीज्ड। गेटिंग ना? बिकॉज जब फोर्सेस बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होता है? हीट रिलीज होता है ना। सो इन दिस केस हीट इज रिलीज्ड। गेटिंग ना? यहां पे हीट जो है रिलीज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें पता है कि सिंस AB interactions are stronger than AA interactions as well as stronger than BB interactions. Therefore, so heat released when AB forces are formed is greater than heat absorbed when A forces and BB forces break. Right? Therefore there is net release of heat. Getting ना? Because जब AA forces और BB forces टूट रहे हैं तो उनको ब्रेक करने में जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है, और जब AB फोर्सेस फॉर्म हो रहे हैं उनके फॉर्म होने में जो हीट रिलीज हुआ है, हीट रिलीज इज मोर देन हीट एब्जॉर्ब। इसका मतलब क्या हुआ? देयर अकर्स व्हाट? नेट release of heat. There occurs net release of heat. Getting that? And if there occurs net release of heat, इसका मतलब क्या हो गया? For a solution showing so delta H mixture is what? Negative. For a solution showing negative deviation from the Raoult's law, delta H mixture क्या हो जाएगा? Delta H mixture हो जाएगा negative. ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बारे में आगे बढ़े, जैसे मैंने इसके बारे में बताया, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट फीचर क्या होगा? डेल्टा वी मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट फीचर विल बी डेल्टा V mixture, right? तो डेल्टा V मिक्सचर में क्या हो जाएगा? इन दिस केस सेकेंड फीचर। ये क्या था? ये फर्स्ट फीचर कैसे लिखा था मैंने? A लिखा था। ठीक है, तो सेकेंड फीचर हो गया B, राइट? सेकेंड फीचर हो गया डेल्टा V मिक्सचर। डेल्टा V मिक्सचर इज व्हाट? नेगेटिव। जैसे हमने देखा था आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सचर वाज 0, मतलब अगर हमने 1 लीटर लिया तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? 2 लीटर होगा। हमने पॉजिटिव डिविएशन में क्या देखा था? पॉजिटिव डिविएशन में देखा था कि डेल्टा वी मिक्सचर इज पॉजिटिव, मतलब 1 लीटर प्लस 1 लीटर सोल्यूशन ए और बी के लिए, लिक्विड लिए, लिक्विड ए 1 लीटर, लिक्विड बी 1 लीटर, तो जब फाइनल सोल्यूशन होगा उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा? मोर देन 1 लीटर होगा। मगर नेगेटिव डिविएशन में क्या है? नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा? नेगेटिव डिविएशन में व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन? इन दिस केस VA क्या है? वॉल्यूम ऑफ प्योर A
VB क्या है? वॉल्यूम ऑफ प्योर बी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच शोज द नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। समझे क्या? राइट। तो in this case this is the situation, right? और इसका रीजन क्या है? रीजन वही है, because AB interactions are stronger than AA interactions and BB interactions. AB interactions are stronger than AA interactions and BB interaction. इस वजह से जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है that will be less than वॉल्यूम ऑफ A plus वॉल्यूम ऑफ B. इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं, इफ आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस एग्जाम्पल, अगर हमने वॉल्यूम ऑफ ए कितना लिया? 1 लीटर लिया। वॉल्यूम ऑफ बी कितना लिया? 1 लीटर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी लेस देन 1 प्लस 1। 1 लीटर प्लस 1 लीटर विल बी लेस देन कितना? 2 लीटर्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी लेस देन व्हाट? 2 liters, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी लेस देन 2 liters, ठीक है। This is 2 liters. This is 2 liters, right? Similarly, if I just talk about the next characteristic feature, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो जैसा मैंने बताया था, जब कोई भी सोल्यूशन फॉर्म होता है, सोल्यूशन कैसा अपने आप फॉर्म होता है ना, तो द डेल्टा जी, व्हेन द सोल्यूशन विल बी फॉर्म, वेट, जस्ट 1 मिनट, यहां पे था यहां पे, राइट। मैंने ऑलरेडी बताया कि जब कभी भी कोई सोल्यूशन फॉर्म होता है तो वो अपने आप से फॉर्म होता है ना। तो जब वो अपने आप फॉर्म होता है मतलब क्या? वो स्पॉन्टेनियस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा जी मिक्सचर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। एंड जब कभी भी सोल्यूशन फॉर्म होता है तो एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर ना। सो डेल्टा एस मिक्सचर कैसा होगा? डेल्टा एस मिक्सचर इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। ये बात मैंने बता के दी थी, करेक्ट ना? मैंने आइडियल सोल्यूशन में ये बात बताई थी, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सोल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, ठीक है। नाउ वन बाय वन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द एग्जांपल्स। मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें एग्जाम्पल्स जो हैं, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, जो मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इज एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, अगर यहां पे हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इन दिस केस फर्स्ट if I talk about acetone and
क्लोरोफॉर्म। इफ आई टॉक अबाउट एसीटोन, एंड ये पहला एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ negative deviation from the Raoult's law. It is a very important example. Acetone and chloroform. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म की, तो इस केस में, चलो यहां पे बताते हैं, इस केस में एसीटोन का स्ट्रक्चर हमें पता है, ये ऐसा होता है, ठीक है ना, ओनली एसीटोन, CH3CO CH3। C डबल बॉन्डो एंड CH3, करेक्ट ना। तो अगर हम बात करते हैं प्योर एसीटोन की, तो प्योर एसीटोन की बात करेंगे, तो प्योर एसीटोन के केस में क्या हो जाएगा, प्योर एसीटोन हमें दिख रहा है कि एक ऐसा डाइपोल है, डाइपोल है जिसमें एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैसा है, एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है कार्बन, ये ऐसे गया है, बिकॉज एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे गया है μ1, एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैसे गया है, इस तरह से गया है μ1, बिकॉज ये वाला कार्बन कैसा है, ये वाला कार्बन है sp3 और ये वाला कार्बन कैसा है sp2, तो sp2 कार्बन कैसा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। और एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर कैसे जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर जाएगा कार्बन से ऑक्सीजन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस एंटायर एसीटोन जो है, दिस एंटायर एसिड, चलो इसको तुम्हें पता ही होगा, वैसे इतना बार बार डिटेल में मुझे हर चीज बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, CH3 डबल बॉन्ड हो, तो ये बहुत कॉमन एग्जांपल है एसीटोन क्लोरोफॉर्म, समझे क्या। सबसे पहले इसी को ले रहा हूं, sp3 कार्बन, दिस कार्बन इज व्हाट, sp2 कार्बन, तो एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे, एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे, अभी कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, डेल माइनस होगा, करेंगे ना, और बाकी पे क्या होगा, डेल प्लस होगा, राइट। तो मैं बस ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूं, डेल प्लस डेल माइनस दिखा के। तो इफ आई जस्ट show the structure of acetone, if I just show the structure of acetone, CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे डेल माइनस है, और बाकी पूरे पे क्या है, बाकी पूरे पे एक तरह से देयर इज डेल प्लस। तो जो प्योर एसीटोन है, प्योर एसीटोन में क्या होगा, प्योर एसीटोन में, प्योर एसीटोन इन्वॉल्व्स, प्योर एसीटोन हैज, प्योर एसीटोन हैज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, प्योर एसीटोन के पास क्या है, हैज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। गेटिंग ना, राइट। एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूं क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म मैंने बताया था कि क्लोरोफॉर्म में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म जो है, दिस इज CHCl3, ठीक है। तो CHCl3 में यहां पे देखा जाए, दिस इज क्लोरीन ना, मतलब यहां पे क्या डेल माइनस है, ये डेल माइनस है, ये डेल माइनस है,
और कार्बन क्या आएगा, डेल प्लस आएगा। तो अगर कार्बन में डेल प्लस आएगा तो कार्बन क्या करेगा, बदले में इस वाले हाइड्रोजन से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो इस वाले हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा, डेल प्लस आ जाएगा, राइट। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म हैज वैन डर वाल इंटरेक्शन, मैंने ऑलरेडी बताया था। क्लोरोफॉर्म हैज वैन डर वाल interactions, correct ना। now when chloroform and acetone are mixed together, तो प्योर acetone has got dipole-dipole interaction and pure chloroform has got van der Waal interactions, ठीक है। now when chloroform and acetone are mixed together, chloroform acetone मतलब acetone and chloroform जब ये एक साथ मिक्स होते हैं तो इनमें क्या होगा, CH3 C double bond O CH3 and HC Cl and Cl। तो एसीटोन में पता है ऑक्सीजन क्या डेल माइनस है और क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन क्या डेल प्लस है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे दे विल अकर द इंटरेक्शन बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म थ्रू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब दिस बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग intermolecular hydrogen bonding between acetone and chloroform। acetone and chloroform, there is a very strong intermolecular hydrogen bonding between acetone and chloroform, getting na, which is stronger than acetone as well as chloroform interactions, ठीक है ना, राइट। इस वजह से एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म विल शो व्हाट, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म विल शो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इट विल शो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म विल शो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, ठीक है, राइट, ऐसा है। नाउ इफ यू जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल में एक जनरल फॉर्म पैटर्न याद कर लो। सेकेंड एग्जांपल अगर मैं लू, मैंने पहला एग्जांपल लिया एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। सेकेंड एग्जांपल में जस्ट रिमेंबर वन थिंग इन जनरल, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि सेकेंड एग्जांपल में water and any inorganic acid, water and any inorganic acid, water and
एनी इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, जैसे वाटर एंड HNO3, गेटिंग ना, प्योर वाटर प्योर HNO3, उसी तरह से वाटर एंड H2SO4, getting, similarly water and HClO4, right, similarly water and HCl, they will always show negative deviation from what? From Raoult's law. ये एक कॉमन सा एग्जांपल है. वाटर एंड एनी इनऑर्गेनिक एसिड विल ऑलवेज शो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. अभी बाकी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, उनको देख लो ध्यान से. मैंने ऑलरेडी बताया कि क्वेश्चंस जो आते हैं वो एग्जांपल से ही आते हैं, ठीक है, तो एग्जांपल से फोकस करेंगे. लेट अस सी फ्यू मोर एग्जांपल्स. तो देखो, जैसे मैंने बताया, पहला एग्जांपल तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, करेक्ट ना, क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल एसिटेट, वाटर एंड HCl, वाटर एंड HNO3, acetic acid and pyridine, chloroform and benzene, getting na. So these are the examples which you have to learn, getting chloroform and methyl acetate. So acetone, chloroform I have told, water HCl, water HNO3, water H2SO4, acetic acid and pyridine, getting acetic acid और pyridine में क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाता है, getting क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन के बीच में भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पॉसिबल हो जाता है, क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल एसिटेट के बीच में भी कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगा. चलो एक बार देख लेते हैं एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल एसिटेट, क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल एसिटेट, थर्ड एग्जांपल. बस मैं इंटरेक्शन दिखा देता हूं, ठीक है ना, एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है, राइट. थर्ड एग्जांपल इसका हो गया थर्ड एग्जांपल हो गया third example is chloroform and methyl acetate, ठीक है. तो क्लोरोफॉर्म में मैंने बताया कि क्लोरोफॉर्म में क्या है, ओनली वैन डर वाल फोर्सेस आर पॉसिबल. क्लोरोफॉर्म हैज गॉट ओनली वैन डर वाल फोर्सेस पॉसिबल इन क्लोरोफॉर्म. तो क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3, इस क्लोरोफॉर्म में ये जो है यहां से दिस इज डेल प्लस, हाइड्रोजन डेल प्लस आ जाएगा, बाकी ये सब डेल माइनस वाले क्लोरीन है, ऑल द क्लोरीन आर डेल माइनस. तो यहां पे क्लोरोफॉर्म में क्या, ओनली वैन डर वाल फोर्सेस आर पॉसिबल, ओनली वैन डर वाल फोर्सेस पॉसिबल. क्लोरोफॉर्म में ओनली वैन डर वाल फोर्सेस आर पॉसिबल, राइट. बट जब इसको मिथाइल एसिटेट साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो मिथाइल एसिटेट क्या है, ईस्टर है ना, तो मिथाइल एसिटेट, तो मिथाइल एसिटेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज एन ईस्टर. मिथाइल एसिटेट ना मतलब एल्किल एल्केनोएट होता है, मतलब एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल, ठीक है. तो अगर एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल से मिलकर बना है, इसका मतलब ये किस तरह से हो जाएगा, मिथाइल एसिटेट क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 OCH3. This is methyl alcohol का पार्ट, दिस पार्ट इज ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड दिस पार्ट इज ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है. तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमें दिख रहा है कि मिथाइल एसिटेट एंड क्लोरोफॉर्म में क्या है, किस तरह से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, CH3
C डबल बॉन्ड O एंड किस तरह से OCH3। ये क्या हो गया, ये मिथाइल एसिटेट हो गया ना, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये इस तरह से हो गया। इसको सेंटर में बनाता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटेट, चलो बस फॉर्मूला लिख देता हूं पहले यहाँ पे, मिथाइल एसिटेट सेकेंड। हमें ऐसे ही देखना है, कोई भी एग्जांपल है हमें देखना है दोनों बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन है। मिथाइल एसिटेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटेट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो अब अगर हम लोग मिथाइल एसिटेट एंड क्लोरोफॉर्म को एक साथ रिप्रेजेंट करें कि दोनों जब एक साथ आएंगे तो कैसा इंटरेक्शन दिखाएंगे, तो देखो जरा डायग्राम से देखते हैं। मिथाइल एसिटेट एंड क्लोरोफॉर्म टुगेदर, मिथाइल एसिटेट एंड क्लोरोफॉर्म, मिथाइल एसिटेट एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो यहां पे देखो दो दो ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन के लिए मैं यहां पे बनाता हूं क्लोरोफॉर्म HCCl Cl एंड Cl, ये डेल माइनस ये डेल प्लस, और उसके बाद एक और ऑक्सीजन है तो यहां पे बना देता हूं HC क्लोरोफॉर्म CHCl3 Cl Cl एंड Cl। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया डेल प्लस एंड दिस ऑल्सो बिकम्स डेल माइनस, राइट। तो इनके बीच में भी क्या हो जाएगा, एक तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया और एक ये आ गया स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देख सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन कितना ज्यादा है। पहले क्लोरोफॉर्म कैसा था, उसमें बस देयर वाज ओनली वैन डर वाल इंटरेक्शन, मगर मिथाइल एसिटेट के साथ क्या है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज देयर, करेक्ट ना, राइट। सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग very strong intermolecular interaction between acetone and क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल एसिटेट, है कि नहीं, क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल एसिटेट, मिथाइल एसिटेट। देयरफॉर क्या है उसमें, इसमें भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ आ जाएगा, ठीक है, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा है इसमें, तो मैंने 3 एग्जाम्पल तो बता दिए, 4 एग्जाम्पल बता दिए मैंने। आई हैव टोल्ड यू अबाउट what? I have told you about chloroform acetone, chloroform methyl acetate, water, HNO3, correct? Now we are left with acetic acid and pyridine, chloroform and benzene, ठीक है। तो acetic acid and pyridine में भी strong intermolecular interaction, acetic acid and pyridine, करेक्ट ना, strong intermolecular interaction possible होगा उसमें भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर दिस इज डी, फटाफट से देख लेते हैं। एसिटिक एसिड एंड पाइरिडीन, डी एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड, बस अभी स्ट्रक्चर बता देता हूं, बस एसिटिक एसिड एंड पाइरिडीन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड और पाइरिडीन के बारे में, तो एसिटिक एसिड में क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H,
ये एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। इसको बेटर होगा मैं पहले पायरिडीन बना देता हूं। पायरिडीन इज एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड इज CH3COOH, राइट। एंड पायरिडीन जो होता है, पायरिडीन जो होता है C5H5N, मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे शो करें, मतलब इसको अगर मैं यहाँ पे इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं नीचे पे, तुमने पढ़ा ही होगा ऑर्गेनिक में, C5H5N, ठीक है, इस तरह से। और नाइट्रोजन का लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, इन डीलोकलाइजेशन। और यहाँ पे ये सब के सब क्या है, ऑल दीज आर हाइड्रोजन्स, राइट। सो व्हेन पायरिडीन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिटिक एसिड, पायरिडीन जो है, पायरिडीन फॉर्म्स a strong hydrogen bond with acetic acid. So pyridine and acetic acid जो है, therefore pyridine acetic acid show negative deviation from Raoult's law, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, किस तरह से हम इसको ऐसे दिखाते हैं, if we just show it like this, पायरिडीन डेफिनेटली नाइट्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे नाइट्रोजन क्या होगा, डेल माइनस होगा, ठीक है। सो दिस नाइट्रोजन एंड इन एसिटिक एसिड वी हैव HO, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन, एसिटिक एसिड में इस ऑक्सीजन पे क्या है, इस हाइड्रोजन पे क्या है, डेल प्लस है, ऑक्सीजन क्या है, डेल माइनस है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पायरिडीन और एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस बिकम्स अगेन व्हाट, अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड between pyridine and acetic acid. Hence, it shows, hence, the mixture shows negative deviation फ्रॉम राउल्स लॉ। बस हमें ये देखना है कि हम जो दो लिक्विड्स को मिक्स करें उनके बीच में कोई भी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बन रहा है क्या, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ऐसा कोई इंटरेक्शन बन रहा है क्या। तो अगर ऐसा इंटरेक्शन बनता है तो जनरली क्या हो जाता है, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ होता है, ठीक है, राइट। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में बढ़ता हूं, तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल हमको इसमें इट इज गिवन एज शायद बेंजीन के साथ है, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन का मैं एग्जांपल बताता हूं।
क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन में क्या दिखाएगा? इट विल ऑल्सो अगेन इट विल शो द नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ. उसका एग्जाम्पल रीजन बताता हूं. एग्जाम्पल नंबर 5, पायरिडीन एंड एसिटिक एसिड वाज एग्जाम्पल नंबर 4 ना. ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, राइट. एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहां पे ई वाला, दिस इज क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन. ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि क्लोरोफॉर्म में बहुत बड़ा पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के पास क्या है, 3 क्लोरीन है. ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं तुम्हें, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन को, इफ आई जस्ट शो यू लाइक दिस, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, इस तरह से अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म पास क्या है, एक बहुत बड़ा पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके पास, बिकॉज हर एक क्लोरीन पे क्या है, ईच क्लोरीन हैज गॉट हाउ मेनी, 3 लोन पेयर्स, है कि नहीं? ईच क्लोरीन हैज 3 लोन पेयर्स ना, वी नो दिस. Each chlorine has 3 lone pairs. So it has chloroform has large polarizable electron cloud. Getting ना? उसी तरह से अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है हमें पता है. बेंजीन की अगर हम बात करें, if we just talk about benzene, तो बेंजीन के पास भी क्या है, बेंजीन ऑल्सो हैज, दिस ऑल्सो हैज लार्ज पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, large polarizable electron cloud of pi electrons ना, राइट. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब must have read किस तरह से, गेटिंग, और इस तरह से ये सब पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स के ना, जिनके बीच में ऐसा क्या होता है, रेजोनेंस इज पॉसिबल. इस तरह से सर ने पढ़ाया होगा ऑर्गेनिक में, आशीष ने, ठीक है ना, इस तरह से, राइट. सो व्हाट हैपेंस कि therefore there occurs strong interaction between chloroform and benzene, CHCl3 and benzene. Hence it shows, so they show negative deviation from Raoult's law. They show the negative deviation from the Raoult's law. ठीक है. So these were the examples. So आज की क्लास में यहीं पे बंद करता हूँ. कल की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर देन विल मूव ऑन टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज.
राइट। तो आज जो मैंने जितना भी पढ़ाया दिस ऑल इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, विल स्टॉप हियर। थैंक यू।